Hello everyone. Today we will discuss a very important topic, capacitance of a parallel plate capacitor with vacuum or air in between plates. आज हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? हमने इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा था। हमने समझा था कैपेसिटर में 2 कंडक्टर्स होते हैं। अगर उन कंडक्टर्स की शेप प्लेट्स की तरह है तो आप उसे नाम देते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उन प्लेट के बीच में जो स्पेस है, अगर उस प्लेट में बीच में स्पेस में हम वैक्यूम और एयर कंसीडर करते हैं तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम और एयर। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम or air in between the plates. Okay students, now first of all we have to consider 2 metallic plates. 2 metallic plates having some cross section area. उनका कुछ एरिया होगा और सबसे पहले हम उन्हें पैरेलल अरेंजमेंट में रखेंगे। तो हमें चाहिए 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो हम डायग्राम से शो करते हैं। लेट these are 2 plates. This is first plate, this is first plate and this is second plate. This is second plate. हम यहाँ कैपेसिटर का साइड व्यू शो कर रहे हैं। दिस टाइप प्लेट्स इस तरह से रखी होंगी। दिस वन plane will be perpendicular to the paper. Now here is input, this is output. हम इनपुट से कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट में चार्ज वो आएगा। तो ये जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया है वो एरिया सेम है। तो हम इनके एरिया को ए से डिनोट कर रहे हैं। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है और उसे कैपिटल ए से डिनोट किया है। दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ गैप है, उस गैप को हम डी से डिनोट करेंगे। द गैप इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी। दिस इज द गैप between the 2 plates of parallel plate capacitor. This gap is small d. This one. Now we will provide some charge to plate first. We will provide some charge to plate first. This is plate first. We will provide suppose positive charge to plate first. And due to induction, negative charge will induce on the nearer face of the plate second. तो इसके nearer face किससे? पॉजिटिव चार्ज से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा और आउटसाइड पॉजिटिव आएगा और उधर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें आउटसाइड चार्ज को नहीं शो करना है। और एज वी नो, क्योंकि इस प्लेट को हमने फर्स्ट माना है, इस प्लेट को हमने सेकंड माना है, और एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन बिटवीन द गैप्स ऑफ द प्लेट्स। प्लेट की गैप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम उन्हें इलेक्ट्रिक लाइन से शो कर सकते हैं। दीज लाइन्स, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड्स एट नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. These are electric field lines showing the direction of electric field in between the plates of parallel plate capacitor. Okay, these are electric field lines, and the magnitude of electric field we can consider E naught. E naught, this is the electric field in between the plates. Okay students, we have to give positive charge and here will be induced charge, negative charge. तो हमने positive Q चार्ज दिया और negative चार्ज induce हो गया। Now in this there are 2 metallic plates. हमने क्या consider किया? हमने 2 metallic plates को consider किया है। In this there are 2 metallic plates kept parallel to each other. 2 metallic plates kept parallel to each other with a small gap, और इनके बीच में एक
गैप है पैरेलल टू ईच अदर विद अ स्मॉल गैप। हमने स्मॉल डी से उस गैप को डिनोट किया है। These are two parallel plates and the distance is small d with a small gap. Now कुछ कंसीडर करते हैं कि हमने चार्ज कौन सा लिया है। It is given charge. Let plus Q is the charge given to plate first, जो हमने फर्स्ट प्लेट को दिया है, that is the given charge plate first पे, and minus Q charge is the induced charge on nearer face of plate 2. Negative Q minus Q is the charge induced on nearer face of plate second. Nearer face of plate second. Okay student, this is the induced charge. Plus Q is the given charge or minus Q is the induced charge on the nearer face of plate second. Capital A is the area of cross section of each plate. दोनों प्लेट का area of cross section same है। Area of each plate. Now the distance, this is area which is same. D is the distance between the plates. Small d, distance between plates first and second. Distance between plates first and second. Between plates first and second. Okay, now there is an electric field. We denoted it by E naught. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को E naught से डिनोट किया है। E naught is the electric field between the plates. प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। Let E naught is the electric field produced in between plates. हमने इसे E naught इसलिए डिनोट किया है क्योंकि प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है। हम या तो वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं या एयर कंसीडर कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। E naught इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन बिटवीन प्लेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमने गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन में पढ़ा था, अगर हमारे पास टू प्लेट्स हैं तो उनके इन बिटवीन एक रीजन होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप जो होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब एक प्लेट पे प्लस का चार्ज होगा और सेकंड प्लेट पे उतना ही माइनस का चार्ज होगा, तो उस समय में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप इसे पहले देख सकते हो गॉस थ्योरम की फोर्थ एप्लीकेशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ ई नॉट से डिनोट कर रहे हैं इसे, ई नॉट विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। देयरफॉर तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ई नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए आप लिख सकते हो। दिस इज the value of electric field. Let's suppose it is equation number first. This is equation number first. Now what we have to calculate? We have to calculate capacitance of parallel plate capacitor. हमें capacitance कैलकुलेट करनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q by V। तो चार्ज हमारे पास है ऑलरेडी, हमने चार्ज प्लेट को दिया है, गिवन चार्ज टू प्लेट फर्स्ट, बट V इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, किस तरह से कैलकुलेट करें? इसके लिए एक मैं बेसिक फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। हमें पता है जो पोटेंशियल होता है वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी टू आर बोलते हैं, यहाँ हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं बिटवीन द प्लेट्स, तो ई डॉट डी एल। बट ई डॉट डी एल में हमें एंगल देखना होगा। जब इसे ओपन करेंगे हमारे पास कोस थीटा आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो शीट रखी है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी।
तो जो प्लेट है वो एक तरह से एक पोटेंशियल रखेगी, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें, और जो लेंथ मतलब उसका जो एरिया होगा, लेंथ एरिया पे होगी, उसके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। तो dl को जब आप टोटल इंटीग्रेट करोगे, टोटल लेंथ हमने यहाँ पर गैप लिया हुआ है d, तो आप लिख सकते हो E इंटू डी। बट यहाँ E की जगह E नॉट है, तो जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास आ जाएगा E नॉट इंटू डी। दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? नाउ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन प्लेट विच इज V, विच इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी, E नॉट इंटू डी। और E नॉट की वैल्यू हमारे पास है विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, देयरफॉर V इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ऑन D into D. Okay students, now second, this is equation number second. Now we know the formula of capacitance Q by V, C is equal Q by V. Now capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor, हम इसकी कैपेसिटेंस को C नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, हम वैक्यूम और एयर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई भी मीडियम नहीं कंसीडर किया है, हमने वैक्यूम या एयर कंसीडर किया है। तो C नॉट विच इज Q अपॉन V, Q अपॉन V, V की वैल्यू हमारे पास है QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ चार्ज से चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो नेट रिजल्ट बचेगा वो क्या बचेगा? C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D. This is the formula of capacitance of parallel plate capacitor with vacuum or air in between the plates. Okay student, this is the required formula of capacitance of parallel plate capacitor. This is the formula capacitance of parallel plate capacitor when vacuum or air in between the plates. Thank you very much.